Hello everyone, welcome to Your Engineer. Today we are going to discuss the theory of simple bending. Theory of simple bending means when there is a beam and the loads are vertically applying on that, then that beam tends to produce some deflection, and we are going to understand that how much stresses the beams are applying to resist that particular loads, and what will be the deflection and everything. So how these are related with modulus of elasticity, with moment of inertia, and the orientation and structure of that particular element, how it defines the bending. Okay, bending is one of those loads where like wings, suppose that is a cantilever wing. So wing is a cantilever beam where the loads are applied from the end to the root and they produce a little deflection. Okay, and in the same way fuselage is also a type of beam, and every other structures which are inside, those are also a beam. So there are bending on the total of the thing. So the simple bending means that there is no torsion associated with it. Okay, so that's pure bending. Theory of pure bending means there is no torsion associated with it, there is no shear associated with that. Okay, so we are not considering the torsion and shear which are commonly associated with the bending. So we will just see theory of simple bending. So let's see the theory of simple bending. Okay, and we will also derive the formula. The formula is sigma b by y equal to m by I equal to E by R. So I am going to derive this bending equation and just follow me till the end, and we are going to discover a lot of topics here. So in the first, suppose this is a particular cutout section of a beam. Okay, and this is the centroidal axis. Centroidal axis means the axis on which the centroid exists. Centroid means on the basis of area, the particular common point around which all the area and all the loads are associated. So this is centroidal axis. There is a thing called neutral axis or neutral plane. So when the bending happens in any element, suppose this is a duster and it's bending. So what happens, that there must be a plane in the particular duster or particular component which do not changes its length. So after bending what happens, this is before bending, and after bending it will happen like this. Okay, so suppose we are taking a section here, okay, suppose this is M, N, this is P, Q, okay, and one more thing is taken here, S, T. Okay, the same thing will happen here now. M and P will come close, N and Q will go further when there is a moment acting. Okay, and S and T will also different. Okay, so I would say that the position has changes, so it will be M dash, P dash, it will be S dash, T dash, it will be N dash, Q dash. And also if neutral axis is NA, I can say that it is N dash, A dash. So N dash, A dash or NA. NA is a neutral axis. Okay, and N dash, A dash is also a neutral axis. This is before bending and this is after bending. Okay, so what happens, that before bending and after bending, the neutral axis does not changes its length. See, MP has reduced to M dash, P dash, NQ has enlarged to N dash, Q dash, ST has also enlarged. I don't know how much it has enlarged, but एक बात जो मैं आपको बता दूं, न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो कभी कम नहीं होती, ना वो कभी ज़्यादा होती है. ठीक है, सिंपल बेंडिंग के कुछ अजम्पशंस होते हैं. ठीक है, वो अजम्पशंस क्या होते हैं? पहली बात तो ये होती है कि जो बेंडिंग होगा, जो बीम होगी वो होमोजीनियस होगी. ओके, उसमें कोई भी मटेरियल्स जो होंगे वो सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे.
सेकंड आपकी होती है कि बेंडिंग में न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा प्लेन होगा जहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड आपका ये होता है कि जो सेक्शंस होंगे वो प्लेन होंगे, प्लेन सेक्शंस विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो देखो एम एन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एम डैश एन डैश भी अभी स्ट्रेट लाइन है, मैंने एम डैश को कर्व नहीं बनाया। पी और क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो पी डैश क्यू डैश भी स्ट्रेट लाइन है। लाइक प्लेन्स विल रिमेन्स प्लेन। अगर आप इधर से देखोगे इसका कटआउट सेक्शन और इधर से देखोगे कटआउट सेक्शन, तो कटआउट सेक्शन विल बी सेम, प्लेन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो होता क्या है कि जब किसी चीज़ को बेंड करते हो तो वो कर्वेचर बनाती है। लाइक मैं इसको बेंड करूंगा तो क्या करेगा, ये गोल सा कर्वेचर बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, पूरा बनाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक सर्कल थोड़ा बन जाएगा ये, लेकिन हाँ कर्वेचर बनाने की कोशिश करेगा। और एक ऐसा कर्वेचर जिसका रेडियस क्या होगा, आर। तो ये जो अगर देखा जाए तो ये एम डैश एन डैश और पी डैश क्यू डैश मिलके क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो O, और जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ तक होती है आपकी, द डिस्टेंस इज टिल न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से क्या बनाएंगे, वो एक आर रेडियस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मीन्स अ वेरी स्मॉल एंगल, ओके। सो दे विल सबटेंड द पर्टिकुलर एंगल एट सेंटर विच इज डेल्टा थीटा। अब करना क्या है हमें, देखो जब हम स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो फ्रॉम हुक्स लॉ वी नो दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है हुक्स लॉ से। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब सपोज करते हैं एक बात कि ये जो एस टी है ये न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे है, y डेप्थ, y क्या है, डेप्थ है। अब यहाँ पर जो होगा ये भी y होगा, ठीक है। सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस थी m से p के बीच में, ये डिस्टेंस है डेल्टा z। तो mp की डिस्टेंस भी डेल्टा z है, na की डिस्टेंस भी डेल्टा z है, st की डिस्टेंस भी डेल्टा z है, nq की डिस्टेंस भी डेल्टा z है, सारे के सारे डेल्टा z है। बाद में क्या हुआ, m डैश p डैश की डिस्टेंस चेंज हो गई, s डैश t डैश की डिस्टेंस चेंज हो गई, n डैश q डैश है चेंज्ड, बट n डैश a डैश और na तो सेम है। हमने बताया कि na और n डैश a डैश सेम है। तो उस टाइम पर n डैश और a डैश ये दोनों चीज़ आपकी सेम होगी। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है, ओके। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस क्या है, सिग्मा b प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, स्ट्रेन होती है आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब हम देखो ओरिजिनल लेंथ क्या है, कौन बता सकता है ओरिजिनल लेंथ क्या है। देखो पहले ओरिजिनल लेंथ जो थी एस टी की, एस टी हमारा क्या है, एलिमेंट है, क्या है एस टी, एलिमेंट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एस डैश टी डैश माइनस एस टी अपॉन एस टी। ये तो बात हुई है कि नहीं। तो अभी क्या चीज़ है कि एस डैश टी डैश की वैल्यू कितनी है। देखो कितने लोग इस बात को आप जानते हो कि अगर कभी एक सर्कल होता है, उस सर्कल में अगर इस सर्कल का रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस l होती है इसका फॉर्मूला होता है l इक्वल टू आर थीटा, ओके। तो l इक्वल टू आर थीटा है, तो हमें भी ये डिस्टेंस चाहिए, वी वांट डिस्टेंस s डैश टी डैश। तो s डैश टी डैश की डिस्टेंस क्या होगी, r प्लस वाई इंटू डेल्टा थीटा। तो सिग्मा b इज प्रोपोर्शनल टू r प्लस वाई इंटू डेल्टा थीटा माइनस एस टी। अब एस टी की जो डिस्टेंस है वो एन ए के बराबर है, और जो एन ए की डिस्टेंस है वो एन डैश ए डैश की बराबर है। तो एन डैश ए डैश की डिस्टेंस क्या है, आर इंटू डेल्टा थीटा, तो माइनस आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन एस टी कितना है, जो एस टी है वो एन ए के बराबर है, जो एन ए है वो एन डैश ए डैश के बराबर है। दैट मीन्स एस टी इज हियर सेम आर डेल्टा थीटा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ अगर, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सिग्मा बी आर डेल्टा थीटा माइनस आर डेल्टा थीटा, इट विल बी 0, तो इट विल बी वाई बाई आर। सिग्मा बी इज प्रोपोर्शनल टू वाई बाई आर, ओके। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हट जाता है तो क्या आ जाता है, सिग्मा बी इक्वल टू ई टाइम्स वाई बाई आर, एंड दिस विल गिव अस
सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। सो हाउ बेंडिंग स्ट्रेसेज आर रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, ओके। अच्छा, क्यों इलास्टिसिटी से ये बात हुई है, क्यों? क्योंकि देखो लेंथ हैज आइदर कॉन्ट्रैक्टेड और इट हैज बीन स्ट्रेच्ड. So in longitudinal axis the difference is there. Due to curvature the difference is in longitudinal axis. That's why here modulus of elasticity is given. तो इसका आधा काम तो हो गया, सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। अब एक काम और बचा है, वो है एम बाई आई. हाउ एम बाई आई इज हियर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आ रहा है, तो बेंडिंग इक्वेशन में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आता है. पॉज करना. सो वी हैव सीन द फॉर्मूला सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर. तो अब हम देखते हैं फोर्स का चेंज. ओके, सो ऑन द एलिमेंट एस टी फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल ए. व्हाट इज डेल ए? सपोज दो एस टी एलिमेंट है, उसका जो एरिया है वो कितना है, डेल ए है, ठीक है। तो अब डेल ए अगर उसका एरिया है तो हमने क्या करना है कि सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से क्या चीज़ होती है सिग्मा की वैल्यू, ई इंटू वाई बाई आर. तो फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स एफ विल बी इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई इंटू डेल ए, ठीक है। अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, एफ इंटू वाई विल बी इक्वल टू ई बाई आर वाई स्क्वायर डेल ए, ठीक है। तो क्या होगा देखो कि एफ और वाई यानी कोई फोर्स है जो न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस एक बेस लाइन है. जब भी हम मोमेंट लेते हैं तो क्या लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं. तो वो चीज़ क्या होती है, सेंट्रोइडल एक्सिस. तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट फोर्स लग रहा है कहाँ पर, एस टी पर, ठीक है। और बीम पर हमेशा कैसा लोड लगता है, वर्टिकल लगता है. सो इट्स वर्टिकल लोड एंड डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल. सो एफ इंटू वाई दैट विल बी मोमेंट. सो इट विल बी कॉल्ड मोमेंट. मोमेंट इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई बाई आर वाई स्क्वायर डेल ए. सो एम विल बी इक्वल टू ई बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डेल ए. और वाई स्क्वायर डेल ए का इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि देखो, अच्छा ये बात भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वाई इट्स कॉल्ड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया. अगर आप एरिया है, किसी भी चीज़ का मोमेंट ले रहे हो, अगर आप फोर्स का मोमेंट ले रहे हो तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स आता है. दिस एम इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, द टॉर्क जो हम कहते हैं, ठीक है, टॉर्क इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ फोर्स. किसी फोर्स का मोमेंट, तो फोर्स का मोमेंट मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. व्हेन एरिया इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इट्स कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. When again multiplied by distance, it's called second moment of area. So it's again second moment of area. Second moment of area क्या कहते हैं हम, moment of inertia. So m will be equal to e by r into I. तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना, the formula is m by I equal to e by r equal to we know sigma b by y. तो ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन है. अच्छा, हम यूज़ कहाँ करते हैं बेंडिंग इक्वेशन को, देखो जब एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में थिन वॉल्ड सेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो थिन वॉल्ड सेक्शंस में हम अनसिमेट्रिकल सेक्शंस यूज़ करते हैं. अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होती है. अब जैसे आई सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, जेड सेक्शन हो, एल सेक्शन हो, चैनल सेक्शन हो, वेरियस टाइप्स के सेक्शन होते हैं जिसको हम ओपन सेक्शन बोलते हैं. क्लोज सेक्शन हो सकते हैं, मल्टी सेल सेक्शंस हो सकते हैं. तो इन सेक्शंस में हम अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है. पर सिंपल बेंडिंग की जो थ्योरी है वो फॉर्मूले आपके यही रहेंगे, ठीक है. थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, जैसे मान लो जो मोमेंट है वो मोमेंट आपका डायरेक्ट ना लगकर किसी एंगल पे लग रहा हो तो mx और my आ जाएगा, ठीक है. इस तरह से जो चेंजेस आते हैं वो हम यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल बेंडिंग. ओके, सो थैंक यू वेरी मच and please subscribe and you can subscribe for more updates, and also the course which we are running by your engineer, which is crack gate aerospace in 100 days. Okay, so you can watch the course, the description is in the description, the links are given below, and also you can watch this video where you will see how we can crack gate in 100 days. Okay, so that's the plan, and thank you very much.
tomorrow on the 10th October we are releasing the first lecture, and the preview of the first lecture, second lecture is free. So you can see the 10th and 11th day, the lectures are free, so you can watch those videos. Okay, thank you very much, and best of luck.